Today we are discussing one of the topic. Topic name is Shiksha. The title number is 1. This topic title is taken from that Nandi tale for the standard of first year intermediate as a second language Hindi. So this title Shiksha means that education is written by the Manmohan Bhatia. The Manmohan Bhatia's topic. This is the very important and essential topic for the students in a new generation. Before the discussion about the education topic, we can discussing about Manmohan Bhatia's means author's biography. In this part, we are discussing about the Manmohan Bhatia's autobiography, biography. This title is divided into 4 parts. Out of 4, today we are discussing about the first part only. Now we are start the part number 1 as a biography of author of Manmohan Bhatia. He is one of the famous author in Hindi literature as a story writer. So he was born in Delhi in 1958. In this premises, in this year 1958, he was born at the place of Delhi, means Uttar Pradesh state. So he was education. He got the education as a Hindu college, Delhi. In that college, he completed his BCom course. Not only that, in that same campus, he completed his law center LLB also. What one? As LLB course also. He got as an educator in Delhi University. Next, he was started his primary education in his own place, native place, at home only. But from that, as per the education, he continued that he is very interesting in literature as a poet. He started his high school level. He started the poetry in high school level only, means in childhood stage only. कहानियाँ लिखने में भारत की कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई है. Is not only he write the stories in his college or university level, but is a print publishing in different magazines and newspaper too. It means in that period of time, his returns are very famous in that. And what are the titles titles of the story? Means the Badi Dadi, Blue Turban, Akbar Wala. Like this in Hindi titles he write the poem stories. These all are that Ahankar, Badi Dadi, Blue Turban. These are all the titles of Manmohan Bhatia's stories. So nextly is one of the famous Hindi poets
and is not only the poet, one of the editor too. Means that he is very famous as a story writer in Hindi literature. So this is the just a brief introduction about मनमोहन भाटिया's biography. यहाँ आज के इस अंतर में हम एक वाला गद्य विविधा से संबंधित शीर्षक, जो शीर्षक संख्या नंबर 1 है, जो शिक्षा के नाम से लिखा गया है। तो ये वाला शिक्षा जो होती है वो एक कैसा पाठ है? कहानी पाठ है। तो इस पाठ के अंतर्गत लिखने वाले मनमोहन भाटिया जी हैं। इस शिक्षा के शीर्षक के अंतर्गत ये वाले लेखक अपनी प्रतिभा को कैसे दर्शाया है और किस विषय के अंतर्गत इस विषय को किस पद्धति में इसका वर्णन किया है, इससे हमें क्या नीति मिलती है, इस कहानी का मुख्य पात्रधार कौन है ना। तो ये वाला सारा विषय क्या इसका विश्लेषण किया गया। इससे पूर्व अब इस शीर्षक का लिखे जाने वाले मनमोहन भाटिया जी का जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। इस भाटिया जी का जन्म के संबंधी देखा गया तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपका निवास का स्थान जो होता है वो दिल्ली है और इस दिल्ली प्रांत में आपका जो जन्म हुआ है वो 1958 में हुआ है। इस 1958 के अंतर्गत दिल्ली प्रांत में आपका जन्म हुआ और आपका जो शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो हुई है आपका घर पर ही हुई है, क्योंकि तत्कालीन के परिस्थितियों के अनुसार आपका आरंभिक शिक्षा घर पर मानी गई, सीखी गई। और इसी प्रकार आप हिंदू कॉलेज दिल्ली से क्या किया है? बीकॉम वाला स्नातकोत्तर का उपाधि का स्थान ग्रहण किया है। आपका बीकॉम वाला कोर्स जो होता है वो किस कॉलेज से हुआ है? हिंदू कॉलेज से हुआ है। ये हिंदू कॉलेज जो होता है वो दिल्ली प्रांत में स्थित है। दिल्ली के रहे हिंदू कॉलेज से आपका स्नातकोत्तर माने बीकॉम वाला विषय के अंतर्गत इनकी शिक्षा प्राप्त की गई। और इन्हें कैंपस दिल्ली कैंपस से, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कैंपस से इन्हें लॉ सेंटर जिसके अंतर्गत तो उन्होंने LLB का कोर्स विषय को भी उपाधि भी प्राप्त की है। ये LLB जो होती हैं वो क्या होता है? एक न्याय निर्णेता के रूप में बताया जाने वाला विषय है और ये वाला जो कोर्स है वो क्या हो गया? एक एडवोकेट के वकील के रूप में ये प्रचलित होने लगे। और ये वाले जो होते हैं इन्होंने बचपन से ही कहानियाँ लिखने की उनमें एक विशेष रुचि थी। तो इसके कारणवश आपका जो स्तर जो हुआ है न केवल हाई स्कूल और विद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि वो भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के अंतर्गत भी आपकी जो रचनाएं, जो कहानियां हैं वो प्रचलित रूप होने लगी। आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य की इन्होंने कैसे सेवा की है? भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी कहानियां, उपन्यास, निबंध इस प्रकार की रचना करते हुए हिंदी की अपार सेवा की है भाटिया जी ने। और आपसे लिखे गए कहानियां विशेष रूप से भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं में भी क्या हो गए? वो प्रचलित होने लगी। इनकी कहानियां का प्रकाशित हुई। आपकी जो प्रसिद्ध कहानियों में कौन सी उल्लेखनीय कहानियां हैं? जैसे एक व्यक्ति से न केवल एक प्रकार की रचना होती हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं की जाती हैं। उनमें सब की मान्यता नहीं होगी, इसमें कुछ उल्लेखनीय रचना के रूप में प्रचलित होते हैं। ऐसे मनु भाटिया जी के मनमोहन भाटिया जी के लिखी गई कहानियों में विशेष स्तर रखने वाले जो शीर्षकें हैं वो बड़ी दादी
और इसके बाद टर्बन, ब्लू टर्बन, आगे बार वाला, आने अहंकार, हमने मोबाइल की लत, ये सभी जो होते हैं उनके उल्लेखनीय कहानियों के शीर्षक हैं। और ये वाला विशेष रूप से शिक्षा भी इनसे लिखी गई एक कहानी है। इस शिक्षा जो आपके स्तर के अनुसार बताया गया वाला शीर्षक है। और इस प्रकार से आपके कहानियां ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न क्षेत्रों में भी आपसे रचनाएं की गई, हिंदी साहित्य की सेवाएं की गई हैं। और क्या बताया गया, आप बहुविधि प्रतिभा संपन्न हैं। बहुविधि का माने भिन्न पद्धतियों में रचना करने वाला, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, माने कहानी का लिखा गया तो कहानीकार, निबंध का लिखा जाना, उपन्यास का लिखा जाना, अन्य नाटक का लिखा जाना, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र संबंधी रचनाएं विषयों को लेकर जो व्यक्ति से लिखा जाता है तो वो वाला व्यक्ति बहुविधि पद्धतियों वाला, क्या होता है, प्रतिभा को रखने वाला कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों में से मनमोहन भाटिया जी भी एक बहुविधि प्रतिभा संपन्न वाले लेखक हैं। और बहुभाषी भी कहा गया इनको, माने बहुभाषी माने प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी और बहुविधि और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वाले, प्रतिभा माने टैलेंट वाले, और बहुभाषी भी कहे गए। बहुभाषी किसे कहते हैं, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त भिन्न भाषाओं के रचना है, भिन्न भाषाओं का ध्यान रखने वाला, जो रचना करने वाला वो बहुभाषी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों में, बहुभाषी व्यक्तियों में मैंने मनमोहन भाटिया जी का भी एक विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ही वाले नहीं बल्कि बहुभाषी भी माने गए। हिंदी साहित्य में आप विशेष रूप से क्या माने गए, कहानीकार के रूप में प्रचलित हैं या उल्लेखनीय माने जाते हैं, प्रतिभा रखने वाले ऐसे कहे गए हैं। एक व्यक्ति में भिन्न क्षेत्र संबंधी ज्ञान होने पर भी विशेष रूप से जो गुण होता है एक क्षेत्र के अंतर्गत उनका प्रमुख स्थान होता है। इस प्रकार से आप मनमोहन भाटिया जी का विशेष स्थान जो होता है आप वो कहानीकार के रूप में प्रचलित हुए। जैसे एक व्यक्ति से भिन्न क्षेत्र संबंधी रचनाएं होती हैं, इन्हें कहानियां, एकांकी, जीवन या उपन्यास, लेकिन सब में उनका प्रतिभा नहीं बल्कि एक क्षेत्र में जैसा हुआ है, जैसे व्यक्ति से क्या बताएंगे, मैं भिन्न प्रकार के कई प्रकार की रचनाएं होती हैं लेकिन सभी रचनाएं उनकी उल्लेखनीय नहीं मानी जाती बल्कि कुछ विशेष रचनाएं जो उल्लेखनीय मानी जाती हैं। ऐसी रचनाओं में से इस प्रकार इनका मनमोहन भाटिया जी का भी विशिष्ट हिंदी की गई सेवाओं का यहाँ पे प्रचलन किया गया है। ये जो होता है मनमोहन भाटिया जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। और साहित्य में इन्होंने कैसे सेवाएं की हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, आपने कौन से उपाधियों से सम्मानित की गई, एक LLB का माने एक वकील के रूप में सम्मानित किए गए, और बचपन से इनको कहानियां लिखने की रचना मैंने रुचि थी। और आपके जो रचनाएं जो कहानियां हैं न केवल विद्यालय विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि वो भिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में प्रचलित होने लगे। और आपके लिखी गई कहानियों में उल्लेखनीय कहानियां, मैंने विशेष कहानियां प्रमुख कहानियों का शीर्षकें बताई गई। और आप बहुविधि प्रतिभा संपन्न और बहुभाषी भी कहे जाने योग्य बताया गया। ये जो होता है इन आपका संक्षिप्त परिचय है। धन्यवाद।